बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा एक नया दिन, एक नया पॉडकास्ट, एक नई बैठक और एक नया टॉपिक। आज का जो हमारा मकसद है इस पॉडकास्ट को अरेंज करने का, वो कोरिया के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरिया में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या हैं उधर, प्रोफेसर स्कॉलरशिप क्या है, वहाँ पे लाइफ कैसी है, कल्चर कैसा है, वहाँ पे फीमेल्स जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी तमाम गेस्ट हैं वो सब की सब फीमेल्स हैं। ठीक है, सब हमें जुड़ चुके हैं। तो विदाउट फर्दर डिले मैं माइक पास करूँगा सबसे पहले अपने गेस्ट स्पीकर फायजा को, जो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करूँगी। फिर हम वन बाय वन तमाम जो स्पीकर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ओके फायजा, ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone. Myself Faiza Khalid. I am a PhD student in Johnbuk National University. Here my major is like in Pakistan human nutrition, but here I am specialization in like molecular biology and mainly focus on fermentation in like fermentation laboratory. It's like my majorly work is like wet lab. So that's I am doing right now here, and it's my third year is gonna start like from September. 2 years have been passed of my PhD here. ओके, थैंक यू फायजा। सो मरियम, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam and I am doing PhD in bioinformatics. My majors are related to the drug discovery using artificial intelligence, and I am doing PhD from last 3 years, and from August my fourth year will be started. And this is from my side. ओके, थैंक यू। सो ओवर टू यू नम्रा। Hello everyone, I'm Namra and I'm GK scholar in Korea. It's a Korean government scholarship and I'm doing my master's in AI from Korea University. ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के जो हमारे इस पॉडकास्ट में स्पेशलिटी ये है कि तमाम जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो फीमेल्स हैं। हमने पहले जितने भी सेशंस किए हैं 2 सालों में, उनमें ज़्यादातर मेल हजरात होते थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को कोरिया क्यों चूज़ करना चाहिए? If I talk about my field, AI or IT related, Korea is actually really advanced in technology, right side by side with Japan and China. And then there are really good universities, like top ranked universities in Korea, and they focus a lot on research. So I think Korea is a really good place to study, and then it's really safe for everyone, especially females. If we talk about us going alone, I can go out at night, late at night, and there are no worries or anything like that. So I think it's a good place to choose for higher studies. आई थिंक पाकिस्तान के अलावा हर दुनिया का हर कोना मुझे सेफ लगा है। तो अब हम चलते हैं फ़ायज़ा की तरफ। तो फ़ायज़ा, ये बताएं कि आपका स्कॉलरशिप कौन सा है? जैसे मरियम की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो कितने किस्म के स्कॉलरशिप हैं कोरिया में और उनको अप्लाई करने का तरीका क्या है? उनमें डिफरेंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन में या एप्लीकेशन के प्रोसीजर में? ये सारी चीज़ें हमें बताएं। I'm also a GK scholar. It's a Korean government scholarship. So I have been here like on this scholarship. So this scholarship has like divided into two parts. First year you have to get your language course and then you switch to your degree. In language course you have to get like topic 3 levels and then like Korean language. They like it when you know the Korean language and then you join your degree. So, like in Korea, there are like mostly people from Pakistan came on professor scholarship here, like because mostly lab are funded by professor scholarship. And in professor scholarship, basically, the scholarship has been like BK21. It's a Brain Korea scholarship that has been launched in 2021, and they give like really nice stipend and everything, and also the funding. In KGSP, you got around like 1.3 million Korean wons per month. It's around $700, I think. So there are like enough
for like to have your business and everything here. And also like you can save if you want to, but it's not like to have something like in luxury as a student, so it's cover you really well in every field. And the other scholarship in South Korea are like POSCO scholarship. It has been mainly covered like the POSCO industries. They are also like have been related to industry scholarship. And there are every university have their own scholarships also. Like there is an university like Kyongpook, they have like King scholarship. Some student came on that scholarship. It's depend on students like how they well prepared their documents and how they search about the universities and scholarship and everything, and from which scholarship they are targeting. Like if I told you the safe scholarship as a female to come on Korea, it's KGSP, because like you don't have a pressure of like professor on you, so you have like been saved by the government till like 4 year. So for me it's like KGSP is the best one. Like nowadays it's called like GKS scholarship. And documentation, the year we came, the process was really hard because we are not the part of a postile convention at that year. So in that year, some students also give their original documents to Korea and they don't give back your original documents. It's like a chance. So, but student took their chances. I am also one of them. Namra, I think also one of them. So after that, now Pakistan has been like a part of convention, like a postile convention. So you just got your like everything HEC attestation, your MUFA attest. Now you don't need MUFA attestation. You just postile your documents. Now you also don't need a embassy attestation. In our year, we also got embassy attestations. So right now, I think it's easy for students to get their documents ready, but it's depend on timeline. You need like KGSP scholarships open in like every year February in the first month, like in the first week of February. So you have to get your documents prepared in that month to get like really meet the deadlines of this scholarship. ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी कंट्री मेट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, इन्होंने ये कहा है कि जो KGSP स्कॉलरशिप है वो मेन स्कॉलरशिप है, 4 इयर्स का गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर पे आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन है अब वो इतनी हार्ड नहीं है। जैसे मैंने भी चाइना से अपोस्टाइल करवाए थे, और जब मैं यूरोप में आया था तो बहुत एक हैक्टिक प्रोसीजर से मैं गुजरा था। तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, तो अब हम जाएंगे मरियम की तरफ, वो भी इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगी। तो मरियम ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेसर स्कॉलरशिप एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे स्टाइपेंड के हवाले से उन्होंने बता दिया कि KGSP ज़्यादा फेवरेबल है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं लगता, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं कोरिया के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उर्दू में, क्योंकि हमारी ज़्यादा ऑडियंस उर्दू समझती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी ज़ुबान जो उर्दू है उसमें ही तमाम चीज़ें जो है वो करें। ओके मरियम, ओवर। ओके, कोरिया में दो, जैसे कि फायजा ने बताया है कि कोरिया में दो तरह की स्कॉलरशिप्स जो मेनली स्टूडेंट विन करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। एक तो GKS है, जिसके बारे में फायजा ने आपको डिटेल से बता दी है। दूसरी स्कॉलरशिप जो होती है वो है प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें ये होता है कि हम लोग प्रोफेसर्स के उस पे आते हैं, प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, और प्रोफेसर जो होता है फंडिंग जो होती है, लाइक हमारा जो स्टाइपेंड होता है वो प्रोफेसर के प्रोजेक्ट्स में से आता है। बट यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप है जो प्रोफेसर के अंडर ही होती है, डेट इज BK स्कॉलरशिप। वो प्रोफेसर पे डिपेंड करती है। वो मतलब लाइक हर प्रोफेसर को ना, मतलब लाइक उन लोगों ने एक किस्म का कोटा दिया होता है कि आप इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो BK पे रख सकते हैं। लाइक मैं भी BK प्रोफेसर के अंडर हूँ, बट मैं BK से मेरा फंड आता है। तो प्रोजेक्ट्स में ये होता है, ये थोड़ी सी हेक्टिक स्कॉलरशिप है विन करना। उस इस तरह के सबसे पहले तो हमें अपनी फील्ड की मतलब लाइक यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद हमें अपनी फील्ड के प्रोफेसर सर्च करने हैं। प्रोफेसर सर्च करके फिर हमें उन्हें ईमेल्स करनी पड़ती है, और हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता है अपने स्किल्स एक्सपर्टीज़ के लिहाज से कि हम लोग जो हैं वो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ से मैच हो रहे हैं, और हम लोग आपकी लैब जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको प्रोफेसर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आपका अगर कोई रनिंग प्रोजेक्ट है तो काइंडली आप हमें जो है वो फाइनेंस और ये चीज़ें हमारी कवर करें, ताकि हमारी मतलब लाइक हम पीएचडी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले यही मैंने जो अभी बताया है कि हम लोग प्रोफेसर को सर्च करेंगे, फिर हम सर्च करके उसको ईमेल्स करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाउ टू ईमेल प्रोफेसर, लाइक कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक ही ईमेल जो होती है वो, या एक ही टाइप की जो ईमेल होती है वो सारे एक ही डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स को कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईमेल कैसे हम लोगों ने प्रोफेसर्स को करनी है, क्योंकि वो जो ईमेल का टाइटल होता है और जो ईमेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो इतनी कैची होनी चाहिए, और मतलब लाइक हमने एक इंसान को कन्विंस करना है कि हाँ मैं इस कैपेबल हूँ इस टाइप का, कि मैं आपके जो लैब के जो काम है वो कर सकूंगा, मतलब लाइक आपकी जो एक्सपर्टीज हैं या जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उस पर मैं पूरा काम करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी ईमेल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये भी नहीं करता है कि एक ही ईमेल उठा के सब प्रोफेसर को कर दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही डोमेन में लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं तो आपने जिस भी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, तो अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है, जैसे मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हूँ, अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स से बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो हर डोमेन का डिफरेंट प्रोफेसर होता है। तो अगर आप वो काम करना चाहते हैं, और या ऐसा भी होता है लाइक कुछ लोग एक डोमेन से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपने प्रोफेसर को कन्विंस करना है और उससे ये बात करनी है। तो मेनली जो होता है कोरिया में रिसर्च फंड्स अच्छे ही होते हैं, और उसमें इतना जो होता है कि इंसान के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाते हैं। तो जैसे अब बिग सिटीज़ हैं लाइक सोल वगैरह में, वहाँ पे प्रोफेसर जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा फंड देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे छोटे शहर हैं, उसमें प्रोफेसर थोड़ा सा कम फंड देते हैं। बट वो इतना फंड होता है कि प्रोफेसर्स के फंड पे भी जो है ना हम इजीली जो है यहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आई थिंक जीकेएस हो या प्रोफेसर स्कॉलरशिप्स हो, दोनों ही जो हैं वो अच्छी हैं कोरिया में। तो अगर कोई फीमेल अवेल करना चाहती है तो शी शुड डू दिस। ओके, बहुत मैं बहुत एक बात शुक्रिया। और ऐड करूंगी, जब प्रोफेसर्स को मेल करते हैं समटाइम ऐसे होता है कि जब आप एक ही टाइम पे पूरे डिपार्टमेंट में मेल कर देते हैं ना, स्टूडेंट्स ने रखा होता है आज इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मेल करनी है, तो उस दिन बैठ के सारे डिपार्टमेंट को मेल वो कर देते हैं। तो कई दफ़ा पर जिस प्रोफेसर के पास अगर फंडिंग नहीं है या स्टूडेंट मतलब लैब में जगह नहीं है, वो अक्सर वही मेल किसी और प्रोफेसर को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर उस प्रोफेसर के पास पहले एक और मेल उसी स्टूडेंट की आई पड़ी है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन ही जाता, और एक कंट्री का भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो इसलिए एक दिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में मेल कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को एक दिन में मेल करें और किसी और यूनिवर्सिटी को साथ मतलब रख लें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ। मेरे प्रोफ़ेसर के पास रिसेंटली एक ईमेल आई थी, तो उसमें बच्चे ने ये लिखा था कि आई हैव अटैच्ड नथिंग, नो सीवी, नो एनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री। उसने कहा कि मैंने ये ईमेल की है सिर्फ़ एडवाइस के लिए कि आप मुझे एडवाइस करें, अगर आपके पास फंडिंग है तो मैं अप्लाई करूँ। तो प्रोफ़ेसर ने कहा कि वो एक डिफरेंट ईमेल थी कॉपी पेस्ट के अलावा, तो प्रोफ़ेसर ने उसको रिप्लाई दिया। तो अगर आपके अंदर से कोई डिफरेंट चीज़ जब निकलती है ना, तो वो क्लिक भी करती है दूसरों को। तो इसी सिलसिला में हम जाएँगे नम्रा के पास। नम्रा, ये हमारा जो टॉपिक है हाउ टू ईमेल प्रोफ़ेसर, जैसे दोनों ने बताया कि कॉपी पेस्ट का बहुत एक आंसर होता है। ये भी चलें, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं, मगर टाइम डिफरेंस जो होता है, आपको पता है अल्लाह ताला की कायनात कितनी बड़ी है। पाकिस्तान में टाइम और होता है, दूसरे कंट्री में टाइम और। तो क्या टाइम डिफरेंस मैटर करता है कि आप कब ईमेल लिख रहे हैं प्रोफ़ेसर को, कब रिसीव हो रही है? समटाइम्स पाकिस्तान में छुट्टियाँ नहीं होती, दूसरे कंट्रीज़ में हॉलिडेज़ चल रही होती हैं, उनके कल्चरल फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को बच्चे कैसे कंसीडर करें? कोई गूगल से वो देखा करें या चैट जीपीटी से पूछा करें? इसके हवाले से आप बताएँ थोड़ा-सा। टाइम एक्चुअली बहुत मैटर करता है, स्पेशली कोरिया में। इधर सब लोग बहुत पंक्चुअल हैं, और यूजुअली प्रोफेसर सुबह-सुबह जब लैब में जाते हैं ना, तो सुबह इट्स 9 बजे स्टार्ट होती है नॉर्मली ज़्यादातर लैब्स। तो वो सबसे पहले जाके सारी ईमेल्स देखते हैं, कौन-सी आई हुई हैं, किसकी आई हुई हैं, कौन-सी इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़। तो मैं करूँगी कि बेशक टाइम डिफरेंस होता है, जब आप ईमेल कर रहे हो प्रोफेसर को, तो जीमेल में बहुत अच्छा फंक्शन है स्केड्यूल करने का।
आप दिन और टाइम स्केड्यूल कर दें और सेंड कर दें, तो वो उसी टाइम पे उस मुल्क के लिहाज से जो भी टाइम आपका पाकिस्तान में बन रहा होगा वो उस टाइम पे चली जाएगी। और अच्छी चीज़ है कि सुबह सुबह जब वो ईमेल खोलें प्रोफेसर, तो टॉप पे आपकी ईमेल आ रही हो। और छुट्टियों में या फिर 6 बजे के बाद चेक नहीं करते प्रोफेसर्स यूजुअली ईमेल्स। तो ये अच्छा चीज़ होगा कि अगर सुबह सुबह ही 9 बजे जो है ना, जिस तरह 9:15 की स्केड्यूल कर दी है और उनको वो ईमेल चलेगी। दूसरा कि सेम ईमेल जो इन्होंने बात की कि सेम ईमेल सब प्रोफेसर को कहते हैं, मैं सबको जो भी एडवाइस करती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले उनकी प्रोफेसर की लैब की वेबसाइट पे जाएं और जाके उनकी रिसर्च एक दफ़ा देख लें। आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोफेसर को किस चीज़ के लिए ईमेल कर रहे हो, और अगर आपका मैच होता है या नहीं होता उनको, क्योंकि आपने कन्विंस करना है कि किस बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करें, क्योंकि वो आपकी पूरी रिसर्च और आपकी एजुकेशन फंड कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना होता है। तो अच्छी चीज़ है कि आप उनकी रिसर्च देख लें और इस तरह मेंशन करें कि मैंने आपकी ये वाला पेपर देखा और आप इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, और मेरी भी जो फील्ड है या मेरा जो मैचिंग है वो अच्छी जा रही है इससे, और मैं भी इसी चीज़ पे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये जो है अच्छा हेल्प करेगा। और दूसरा स्केड्यूल ईमेल, उसके बाद हमेशा हमेशा ईमेल में अपनी सीवी और अगर पब्लिश पेपर या आर्टिकल हैं, ज़्यादातर लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए, पर मैंने मास्टर के लोग भी देखे हैं कि अगर नहीं भी हैं आर्टिकल्स वगैरह, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि आजकल तो इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं कि आप अपना छोटा सा आर्टिकल लिख के उस पर पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो इससे ये इम्प्रेशन पड़ता है कि चलो बच्चे ने कोई मेहनत की अपने ऊपर और वो दिखा रहा है कि मैंने किया है, ऐसी नहीं कुछ भी नहीं है प्रोग्रेस और अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि प्रोफेसर भी पिकी होते हैं, इतने बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सीवी, अपने आर्टिकल्स वगैरह जो भी है ना, और बहुत लंबी ईमेल हो तो तब भी वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लंबी चीज़ें लोग ज़्यादा इट्स टू लॉन्ग तो वो स्किप कर देते हैं। मेन टू द पॉइंट चीज़ें हों उनमें। मेरा ये फील्ड है, मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, आप भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम इस तरह इकट्ठे काम कर सकते हैं। पर लोग ये बात करते हैं, कुछ ऐसे भी केसेस मैंने सुने और प्रोफेसर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर मेन मसला आता है कि वो फंडिंग की बात नहीं करते अपनी ईमेल में। प्रोफेसर ने तो कह दिया ओके मेरी लैब में जगह आप आ जाओ, पर यूजुअली ट्यूशन फीस भी अगर यहाँ पे कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ ये देती हैं, फॉरेनर स्टूडेंट कोई भी हो उसको स्कॉलरशिप देती हैं, पर अगर आपको 70% भी स्कॉलरशिप मिल रहा हो तो बहुत बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर की, आप नहीं कर सकते। ऊपर से फिर यहाँ पे लैब का सीन होता है 9 to 6 और अराउंड दैट टाइम। तो अगर आप 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे आ रहे हो लैब में, तो आपके पार्ट टाइम जॉब रात की करोगे, फिर वो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल बन जाता है। तो ज़रूर फंडिंग की या स्कॉलरशिप की, स्पॉन्सरशिप की बात ज़रूर फर्स्ट ईमेल में करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कमेंट आया है बच्चे का, उज़ैर का, डू यू रिकमेंड अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स इन कोरिया? सो आपने कोई अंडर ग्रेड के बच्चे देखे हैं उधर जो स्कॉलरशिप पे आए हों? अंडर ग्रेड जीकेएस में तो हर साल आते हैं लड़के, लड़कियां भी काफ़ी मैंने देखी हुई हैं, पर जीकेएस में क्योंकि मुझे प्रोफेसर का ज़्यादा पता नहीं है, अंडर ग्रेड को तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता प्रोफेसर स्कॉलरशिप। जीकेएस में सीट्स बहुत कम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सीट है शायद एक सीट है सिर्फ एम्बेसी। ग्रेड की। Yes. तो कंपटीशन बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो अप्लाई करके मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो यहाँ से बैचलर्स करके या फिर कोई और कंट्री भी देख सकते हैं। अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बैचलर्स पाकिस्तान से करके फिर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उज़ैर एक सीट है अंडर ग्रेड की, तो कंपटीशन होता है और वो जो सीट होती है वो अक्सर एम्बेसी के अपने ही जो लोग होते हैं जापान में और ये कोरिया में उन्हीं को मिलती है। तो आप कभी भी इसकी ट्राई ना करें, ये एम्बेसियों के अंदर बहुत ही इस तरह के काम चल रहे होते हैं। यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन के जो लोग होते हैं उनके बच्चों को, या फिर जो अदर रैंक्स के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी एम्बेसीज तक अप्रोच होती हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को ये सीट्स मिलती हैं जो एम्बेसी से निकलती हैं। तो इसमें अपना
अप्लाई करना, एफर्ट्स करना ये बेकार है। तो कोशिश करें बैचलर पाकिस्तान से करें। अगर ज़्यादा ही शौक़ है बाहर आने का अंडर ग्रेड में, तो यूरोप में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है कुछ कंट्रीज़ में अंडर ग्रेड लेवल पे, तो आप उधर भी अप्लाई करें। ओके, थैंक यू नम्रा। आप चलते हैं फ़ायज़ा के पास। फ़ायज़ा, हम डिस्कस कर रहे थे ईमेल का, तो प्रोफेसर को फाइंड कैसे करना है? अगर आप हमें स्क्रीन शेयर करके बच्चों को बता दें कि प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ना कैसे है, उसको फाइंड कैसे करना है, ईमेल कहाँ पे लिखी होती है, कोई रिसर्च पेपर कैसे हमने जो है उसका मेंशन करना है। तो उज़ैर थैंक यू भी कह रहे हैं नम्रा आपको, तो लगता है उनको आंसर मिल गया है। प्रोफेसर्स को फाइंड अगर तो आपने स्पेशली मतलब केजीएस में या जीकेएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी होती है। तो उस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में ही आप मेजर्स भी होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा मेजर दे रही है। तो आप मेनली, और उस डिपार्टमेंट का लिंक भी होता है उस लिस्ट में, तो आप उस डिपार्टमेंट के लिंक पे जाएंगे ना, तो आपको उस डिपार्टमेंट के लिंक के अंदर प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। जैसे अब अगर मैं बताऊं तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का पेज शेयर कर सकती हूँ अपने डिपार्टमेंट का। उसमें अब मेरी वेट लैब है, तो इसकी मतलब आप कह लें कि इस लैब की मतलब कंप्यूटर या उस तरह से वेबसाइट्स तो नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोफेसर की डिटेल होती है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप उस प्रोफेसर का नाम उठा के गूगल स्कॉलर पे डालेंगे, गूगल स्कॉलर पे आपको उस प्रोफेसर की सारी वो उसकी मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ वर्क, तो वहां से आप उसकी रिसर्च देख सकते हैं। मतलब हर चीज में थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हैं थोड़ा सा जी। हमें? तो अभी जब तक ये स्क्रीन शेयर करती हैं, सुल्तान का कमेंट आया, एनी स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेड मेडिकल। इसका आंसर हम देते हैं। आपने कभी देखा है मेडिकल के स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप? आई थिंक अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है ना स्कॉलरशिप्स ओवरऑल जो दुनिया में है ना वो बहुत कम है। उसकी वजह ये होती है कि जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ना वो हायर स्टडीज़ के लिए लाइक पीएचडी और मास्टर्स के लिए स्पॉन्सर की जाती हैं, क्योंकि उन स्टडीज़ की जो है वो रिसर्च होती है, और दुनिया जो है ना वो रिसर्च पे जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आई थिंक अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट होता है वो लर्निंग फेज में होता है, तो उसके लिए बहुत कम स्कॉलरशिप्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। और यहाँ पे जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है डेट इज़ ओनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस होती हैं स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एलिजिबल नहीं होते। तो इसलिए फॉर प्रोफेसर स्कॉलरशिप देयर इज आई थिंक नो स्कॉलरशिप रिलेटेड टू द अंडर ग्रेजुएट स्पेशली फॉर द मेडिकल फील्ड। मेडिकल में तो बिल्कुल भूल जाएं आप अली। अगर आपको चाइना में मिलेगी तो आपको चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स थे वो लैंग्वेज की वजह से भाग गए थे, उन्होंने अपने एक एक दो दो साल भी ज़ाया किए। तो मेडिकल में कोई स्कॉलरशिप नहीं पूरी दुनिया में। यूरोप में भी मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। इटली में सुना है, उसके लिए हम स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे कि वहाँ पे मेडिकल स्कॉलर कैसे विन करना है, तो इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अंडर ग्रेड कोरिया में टोटली कोरियन में है। मतलब जैसे चाइना में सुनते हैं ना, यू हैव क्लासेस इन चाइनीज प्लस इंग्लिश, दे हैव स्पोर्ट फॉर इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्पोर्ट होती है ना वहाँ पे। कोरिया में ऐसे नहीं है, मतलब आपने कोरियंस के साथ बैठ के ही अंडर ग्रेड करना है, तो आपकी अंडर ग्रेड में मतलब कोरियन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अंडर ग्रेड थोड़ा टफ है, और अंडर ग्रेड के इतने स्टूडेंट्स यहाँ देखे भी नहीं हैं और ना आते हैं। तो सुल्तान पाकिस्तानी लैंग्वेज सीखते भी नहीं है। हम चाइना में जब थे तो बाकी नेशनैलिटीज़ के लोग, इवन नेपाल के, इंडिया के, बांग्लादेश के और अफ्रीका के स्टूडेंट्स जल्दी लैंग्वेज सीख जाते थे, और पाकिस्तानी उधर लैंग्वेज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। इस पे हम एंड पे कमेंट करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स पाकिस्तानी बाहर क्या करते हैं। तो फ़ायज़ा आप वो हमें जी, शेयर मैं कर स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं इधर से अप्रूव करता हूँ उसे। तो अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट के प्रोफेसर को ईमेल कैसे करना है मुनीब का, और ये मेल का क्या लिखना हो, मेल में क्या लिखना होता है, तो ये सारे हम इंशाल्लाह इसी जो क्वेश्चन में हाउ टू फाइंड प्रोफेसर उसमें हम कवर करेंगे। तो इसके बाद फिर हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सॉरी, मेरी स्क्रीन, मेरा लैपटॉप मुझे वो कंडीशन में वो दे ही नहीं रहा स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन। 1 मिनट।
आप नीचे जाएंगी ना प्लस जी, जी, का। वो तो मैंने खोल लिया, लेकिन दरअसल मैं मैक यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें वो मुझे एक पूरा बंडल डाउनलोड करने का कह रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मैं 1 मिनट ठहरें, मैं अपने आप को रिमूव करता हूँ तो आपकी स्क्रीन ऐड करते हैं। मैंने खुद को रिमूव किया है, आप अपनी स्क्रीन अब ऐड जी। आई थिंक फ़ाइज़ा हमसे यहाँ से स्टूडियो में से वो चले गई हैं, तो अब चलें, जब तक वो आती हैं हम इनकी तरफ से आते हैं, नम्रा की तरफ। तो नम्रा, हाउ टू फाइंड अ प्रोफेसर? जब एक्चुअली क्योंकि मैं केजीएसपी या जी पुराना नाम केजीएसपी था, आजकल उसका नाम चेंज होकर जीकेएस हो गया। तो जीके स्कॉलरशिप में ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर सेलेक्ट करें, मास्टर्स पीएचडी दोनों के लिए, क्योंकि हमें फंडिंग गवर्नमेंट से मिल रही होती है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है कोरिया यूनिवर्सिटी, और उसमें हर डिपार्टमेंट की अलग वेबसाइट है, फिर उस वेबसाइट में जाओ तो हर प्रोफेसर की अलग वेबसाइट बनी हुई है। तो उसमें ये होता है कि आप लिखो, जैसे मेरा डिपार्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप गूगल पे लिखो डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेलेक्ट की है तो आगे यूनिवर्सिटी का नाम, तो नीचे डायरेक्टली जो पहला लिंक आएगा ना वो उस डिपार्टमेंट का लिंक होगा। अगर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं की तो आप अगर अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो तो क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जिस तरह कोरिया की बात हो रही है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन कोरिया फॉर योर मेजर, जैसे आईटी हो गया, साइंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें वो लिस्ट आ जाएगी। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने लिस्ट कंपाइल की होती है मेजर के लिहाज से, तो आप उससे देख सकते हो। और प्रोफेसर की ईमेल हमेशा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हमेशा मिलेगी। जी, मैं दिखा देती और हूँ। या बोलें, बोलें नम्रा, आप पहले। हम्म, और इसी तरह प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं उधर से। सेम पीएचडी का भी सेम सीन है कि आप प्रोफेसर की ईमेल वेबसाइट के लिंक से, पूरा प्रोफेसर्स का आ रहा होता है, वेबसाइट पे जाओ ना अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, और उधर साथ उनकी ईमेल, उनका नंबर और एड्रेस तक आ रहा होता है जो उनके ऑफिस का होता है। तो आप इजीली ईमेल उधर से ले सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन था ईमेल कैसे करनी है, वही उनके रिसर्च देखें आप, और जो भी रिसर्च, ओ ये रिसर्च अच्छी है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसके लिहाज से उनका रिसर्च पेपर पढ़ लें या टॉपिक्स खाली पढ़ लें कि आपको पता हो कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इन केस वो आपको रिप्लाई कर दें और फिर आपको बाद में कुछ पता ही ना हो वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि यूजुअली आपको इंटरव्यूज़ देने होते हैं काफ़ी सारे, कोरिया में अप्लाई, कहीं पे भी अप्लाई करें इंटरव्यूज़ मस्ट होते हैं। तो वो इंटरव्यूज़ पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका मेजर में या लैब में या प्रोफेसर की रिसर्च है उनमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो रिसर्च ज़रूर पढ़ें प्रोफेसर की, और फिर अच्छी सी ईमेल प्रिपेयर करें। आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह भी हो गई है, डायरेक्ट कॉपी ना करें, उससे आइडिया ले लें कि मेरा ये आइडिया है, ये मेरा मेजर है, ये मेरी सीवी में है और लैब इसमें काम कर रही है, तो मुझे कोई ऐसी अच्छी ईमेल बना के बता दे चैट जीपीटी जो सबको अच्छा से कंपाइल करें, और फिर प्रूफ रीड करके डायरेक्टली सेंड ना करें। चैट जीपीटी ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा होता है जिसमें वो हमें जवाब दे रहा होता है, प्लीज़ उसको रिमूव करके, और पता चल जाता है चैट जीपीटी है तो थोड़ा सा अच्छा सा करके उसको जो है ना, और साथ सीवी वगैरह डाल के सारा कुछ इस तरह अच्छे से ईमेल भेजें। ठीक है, तो ब्रेक में जाने से पहले सोनिया का क्वेश्चन है, सर गाइड फॉर पीएचडी। सोनिया, हमने गाइड कर दिया, आप इसको जब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे उसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, अजहर कह रहे हैं कि मेरे पास कोरियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, टॉपिक लेवल 1 महीने किया है, टॉपिक लेवल 1, क्या ये मुझे हेल्प करेगा स्कॉलरशिप में? अगर यस तो क्या ये मैं मेल में ऐड कर दूं? टॉपिक लेवल 1 ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, पर ये बता सकता है कि
आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं लर्न करने की, अभी से स्टार्ट कर दिया है, तो आगे जाके आप और ज़्यादा लेवल ले सकते हैं आराम से। और आगे भी आपका इंटरेस्ट है लैंग्वेज लर्न करने के लिए, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई थिंक अगर आपके पास लेवल है, इवन आइल्स वगैरह है, वैसे तो चाहिए नहीं होता, जीकेएस के लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होता है। तो आपके पास आइल्स है या कोरियन कोई भी सर्टिफिकेट है तो ज़रूर ऐड करें या मेंशन ज़रूर कर दें। तो जिन्होंने कॉल पे बात करनी है, ये मैंने लिंक जो है स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके लाइव कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मगर अभी हम एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक से वापस आके आपसे दोबारा बात करते हैं। सो वेलकम बैक। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, हम कमेंट्स एंड पे लेंगे, मगर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I am now ungraduated student from Pakistan. I have donated scholarship in foreign country. सॉरी, दोबारा बोलें। Hello. जी जी, आपका क्वेश्चन क्या है? Can you speak again? I have not speaker. So you can't speak Urdu? जी सर। So आप what is उर्दू your बोल question? सकते हैं, उर्दू में अपना सवाल हमें बता दें। जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। अब एफएससी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में ईटा के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि आपने अंडर ग्रेड के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, राइट? यस सर। ओके। I think I got your question is like कि आपने एफएससी की हुई है और अब आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, बट आई थिंक ये आपके लिए अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप होगी। यस सर, बिल्कुल यस। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही चीज डिस्कस की। आपका मेजर क्या है? जी, आपका मेजर, आपने एफएससी किस में की हुई है? एफएससी बायोमेडिकल में की। बायोमेडिकल में? फ्री मेडिकल। प्री मेडिकल में, ओके। यस मैम। आप जीकेएस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में एक सीट होती है और ये स्कॉलरशिप नंबरा फेब में आती है, सितंबर में। अंडर ग्रेजुएट की सितंबर में आती है। ओके। अभी सितंबर में ये जो 9वां महीना अभी स्टार्ट होगा, इसमें ये स्कॉलरशिप आएगी अंडर ग्रेजुएट की। तो इसके लिए आपने अच्छी सी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। इसके लिए बहुत सारे जो हैं वो पॉडकास्ट हो गया, और जैसे नम्रा ने भी आई थिंक बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती रहती है। नम्रा, आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दें जीकेएस के बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर द जीकेएस। I think GK is the only solution for you. सिंपल गूगल पे आप जीकेएस यूजी अंडर ग्रेजुएट और 2024 पिछले साल की देख सकते हैं। यूजुअली सेम ही होती है, हर साल जो आती है थोड़ा सा चेंजेस आते हैं बीच में। तो अगर अभी हमारा जुलाई एंड हो रहा है, अगस्त सितंबर, तो अभी IBCC जो कि पाकिस्तान बोर्ड है उससे, और फिर मोफा से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट कराने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो फाइनल मार्कशीट होती है एक, और एक जिस पे स्टैंप लगी होती है ना बोर्ड की जो होती है शीट्स, और एक होती है
डिग्री का सर्टिफिकेट होता है कि आपने पास कर लिया, वो 2 IBCC से पहले टेस्ट कराने हैं और फिर मोफा से अपोस्टाइल कराने हैं। उसके बाद गूगल पे आप लिखेंगे या फिर कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट है पाकिस्तान में, उस पे जाके आप उधर सर्च कर लें GKS अंडर ग्रेजुएट 2024, तो उसमें सारी GKS बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। पूरा एक फोल्डर है जिसका नाम है GKS गाइडलाइंस। उसमें एक एक चीज़ आपने क्या करनी है, कैसे करनी है, पूरी एक चेक लिस्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या करना है। उसके बाद फिर उसी में नीचे जाएंगे, अपेंडिक्स A है जिसमें परसेंटेज लिखी हुई है कि आपकी इतनी परसेंटेज है तो इतनी आपकी परसेंटाइल बनेगी या जो भी। और फिर एक होगी जिप फोल्डर के नाम से, यूनिवर्सिटी जिप फोल्डर के नाम से, उसको खोलेंगे आप तो उसके अंदर कोरियन में भी है और इंग्लिश में भी है, सारा कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश में सब कुछ है उसमें। उसमें यूनिवर्सिटी के नाम होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी के मेजर होंगे और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये डिग्री आपको किस ज़ुबान में पढ़ाई जाएगी कोरिया में आके, और आप वो सारा देख सकते हैं। बस थोड़ा सा मसला ये है कि सीट एक ही है, और MBBS अगर आप करना चाह रहे हैं तो MBBS मेरा नहीं ख्याल कि आप कर सकते हैं स्कॉलरशिप पे। बाकी फिजियोथेरेपी होगी या फिर और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, शायद इस तरह के फील्ड्स में आप जा सकते हैं आगे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं कि, और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि शायद हम एक पॉडकास्ट में इसको कवर ना कर सकें। तो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो कॉलर्स हैं, उनको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मौका देंगे। चूँकि हमने कोशिश कर सकें तो कॉलर अब हम एंड पे लेंगे या कमेंट्स भी। अच्छा, अब चलते हैं फ़ायज़ा की तरफ से। फ़ायज़ा, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी स्क्रीन के थ्रू, जी तो मैं फिर बता इसके देती बाद हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो जमा कैसे करने हैं, उनको अपोस्टाइल कैसे करवाना है, वो डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा प्रोसेस, वहाँ पे लाइफ कैसी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्रीन शेयर हो गई है फ़ायज़ा की, तो अब जैसे ये फ़ायज़ा जो मैंने है पहले बताया जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो GKS की फाइल होती है उसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स होते हैं मेंशन, और यूनिवर्सिटीज़ भी। तो जब आपने देख लेना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपने करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी करनी है, उसके बाद जस्ट आपने गूगल पे जाके उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखना और उसके डिपार्टमेंट का। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी JBNUR फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, तो मैं सिंपल लिखूंगी तो वो डायरेक्ट वो डिपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। तो आप ये डिपार्टमेंट ओपन करके इसका सीधा प्रोफेसर्स के चले जाएंगे प्रोफाइल पे, और आपको यहाँ पे प्रोफेसर्स की सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। तो जैसे कि आपने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल खोल के, कोई भी प्रोफेसर की प्रोफाइल खोल के आप देख लें, तो यहाँ पे उनका सारा एकेडमिक करियर और उनके पेपर्स तक भी लिखे आ जाएंगे। लेकिन आप उस प्रोफेसर का ऐसे कोई भी नाम मतलब कॉपी करें और इसे बाद में आप ले जाएं गूगल स्कॉलर पे, और गूगल स्कॉलर पे आप जस्ट उसे पेस्ट करें तो आपको उस प्रोफेसर के यहाँ से आप रिसेंट उसके पेपर्स निकाल सकते हैं, और आपको उसके पेपर्स देख के उसके रिसर्च के बारे में पता चल जाएगा कि इस प्रोफेसर की रिसेंट रिसर्च क्या है। और यही सिर्फ 1-2 पेपर्स देखने की ज़रूरत होती है, वहाँ से आप अपना रिसर्च इंस्टेंट देख सकते हैं। मतलब डिफरेंट प्रोफेसर्स की डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जाके कि उस डिपार्टमेंट में एक आधा प्रोफेसर आप शॉर्टलिस्ट कर लें, तो वो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपने किस प्रोफेसर्स के पास या किसके पास जाना है। तो आप उनको मेल करें, और प्रोफेसर जवाब देते हैं मेल का। उनके पास सीट नहीं भी है वो तब भी जवाब देंगे, उनके पास सीट है वो तब भी जवाब देंगे। और अगर वो कहते हैं ना कि हमारे पास मतलब फंड्स नहीं है या इस तरह, तो कई दफ़ा वो आपकी CV खुद से भी कहीं फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके साथ आपको वो मेल में लिखते हैं कि हाँ, हमने आपकी CV इस प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर दिया, हमें लग रहा है कि आपको शायद ये प्रोफेसर ज़्यादा सूट करता है। तो मेहनत है, करें। और फाइल्स पड़ी होती हैं GKS की हर ईयर की। आप फाइल पिछले साल की डाउनलोड, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है जो इस ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और लकीली इस साल तो पाकिस्तान से 80 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पहले सिर्फ 14 सीट्स थी, मतलब 2 साल पहले तक। ये लास्ट ईयर आई थिंक 40 हुई हैं और इस साल 80। तो हायर चांसेस, जितनी मेहनत करेंगे मिल जाएगी। बिल्कुल। तो मेहनत है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। अब चलते हैं फ़ायज़ा के बाद मरियम की तरफ। मरियम, हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं? Related to professor scholarship, I have information, but related to GKS, I think Namra and Faiza will guide well. तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप्स में जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले प्रोफेसर को कन्विंस करके उससे हमें
लेनी पड़ती है स्कॉलरशिप। तो उसके लिए प्रोफेसर जो है ना वो 2-3 डॉक्यूमेंट देता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है रिकमेंडेशन लेटर, कि मैं इस स्टूडेंट को रेकमेंड कर रहा हूँ अपनी लैब में। तो वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लें। सेकंड लेटर होता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोरिया में। उस लेटर में प्रोफेसर जो है वो ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो आपको कितने ईयर्स की फंडिंग देगा और कितनी फंडिंग देगा। ये 2 लेटर्स हमें चाहिए होते हैं। और फिर हमें जो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें, अब जैसे पहले जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम हमें पहले एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाने पड़ते थे। मैट्रिक की जो हमारी सनद होती है उसको हमें, अगर मैं फेडरल बोर्ड से हूँ तो मुझे फेडरल बोर्ड से करवानी पड़नी है, अगर मैं पिंडी बोर्ड से हूँ तो पिंडी बोर्ड से मुझे करवानी पड़नी थी। और डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जैसे मीरपुर बोर्ड है, कश्मीर बोर्ड है, इसी तरह सिंध के भी डिफरेंट, सिंध बोर्ड है। तो हमें जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उससे जो भी आपका रेलिवेंट जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वो हमने अटेस्ट करवाना है। इसी तरह हमें अगर हमने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है तो हमें वो HEC से अटेस्ट करवानी है डिग्री। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले रेलिवेंट टू दैट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री ली है वहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। फिर इन डॉक्यूमेंट्स को हम एम्बेसी से अटेस्ट करवाते थे। बट नाउ आई थिंक नम्रा कुछ शायद सही पता है कि आई थिंक अब यूनिवर्सिटी सॉरी एम्बेसी से अब अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें सिर्फ अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत है। तो अब मैं सिर्फ अपोस्टाइल करवा के, अब द मेन थिंग इज़ इन प्रोफेसर स्कॉलरशिप इज़ लाइक हमें एडमिशन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। तो जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन का प्रोसीजर है हमें वो फॉलो करना पड़ता है। इस सेम लाइक जैसे हम पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके जब उनके एडमिशन्स खुलते हैं तो हमें वहाँ पे एडमिशन्स के सारा जो प्रोसीजर है वो आई थिंक वेल एक्सप्लेन हुआ होता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ हमें रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोफेसर ने दिया होता है, जो फाइनेंस का लेटर प्रोफेसर ने दिया होता है, वो सारा कुछ ऐड करना पड़ता है कि ये प्रोफेसर है और इसने हमें जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब हमने एडमिशन का सारा प्रोसीजर जो होता है, अब कोरिया में ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको पोस्ट करवाने पड़ते हैं बाय यूजिंग पोस्ट कोरियर सर्विस, लाइक जैसे DHL हो गया, पाकिस्तान पोस्ट हो गया। तो उससे आपको उस यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन और अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोफेसर का लेटर वगैरह, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ता है। जब आप वो भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है। 100% चांस होते हैं ऑलमोस्ट कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक स्पॉन्सर लेटर है उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कि वो आपको फंड करेगा। जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर देती है कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गया है। उसके बाद ये होता है कि हमें अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, अपने ऑफिशियल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स। अब हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हमने वो तीनों डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो, और वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म और अपना पासपोर्ट और अपने डिफरेंट जैसे FRC हो गया, ये सब लेकर हमें एम्बेसी जाना है। और एम्बेसी में हमें अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद पासपोर्ट हमें सबमिट करवाना होता है फॉर वीज़ा अप्रूवल। तो जब हम ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ पे अप्लाई कर, वहाँ पे हम एम्बेसी में देते हैं तो तकरीबन आपका होता है कि आई थिंक कोरिया की एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा अप्रूव कर देती है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा, जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप का है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। बट इसमें जो है एक जो बेनिफिट मुझे नज़र आता है वो ये है कि आपकी जो फंडिंग होती है वो आपको, जब प्रोफेसर आपको अडॉप्ट कर मतलब लाइक ले लेता है, इस लाइक अडॉप्टेशन, तो उसके बाद आपको ना मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट से आपको सिर्फ वो एक लमसम अमाउंट नहीं देता, कभी कभार प्रोफेसर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे देते हैं। इट डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट्स। और कभी कभार डिपार्टमेंट्स भी आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी अमाउंट दे देते हैं, तो थोड़ा सा बंदे को बेनिफिट हो जाता है। अब इसके अलावा जो हम लोगों ने एक और चीज़ जो है प्रोफेसर स्कॉलरशिप में, अब जैसे कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हमारा थोड़ा सा एक और चीज़ जो हमारी प्रोफेसर स्कॉलरशिप में होती है, कभी कभार हमें बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट में हमें जो है वो, अब जैसे मेरे केस में $1800 हमें देने पड़ रहे थे एज अ बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी को डॉक्यूमेंट में।
बट इसका जो अल्टरनेटिव है वो ये है, जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं दे पाते बैंक स्टेटमेंट, इतनी अमाउंट की नहीं शो करवा पाते, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने प्रोफेसर से एक और डॉक्यूमेंट होता है कि वो अपनी स्टेटमेंट शो करवाता है प्रोफेसर। तो आप प्रोफेसर से वो डॉक्यूमेंट भी लें कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवा सकता, तो काइंडली मुझे वो डॉक्यूमेंट भी दिया जाए। तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप अपने उसके साथ लगा लें, अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से भी। तो इस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए। और जीकेएस के लिए चूंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फायजा और नम्रा का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आई थिंक सोनिया का जो क्वेश्चन है वो भी एड्रेस हो गया होगा कि पीएचडी के लिए प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मस्ट है। तो कोरिया के लिए मस्ट है, चाइना के लिए नहीं है, बट कोरिया के लिए वो आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। तो नम्रा, आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसका प्रोसीजर क्या है? अगर आप पोर्टल हमें शेयर करके बता दें वो भी अच्छा है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। फायजा, आप कर सकती हो? जी, एक मिनट में। स्टडी इन कोरिया या फिर कोरियन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। को शेयर करना है ताकि आपकी लास्ट टाइम आप जब दूसरी तरफ गई थी स्क्रीन के, तो नज़र नहीं आ रही थी जो आप पेपर हमें ओपन करके दिखा रही थी। तो एंटायर विंडो पूरी शेयर करना, टैब नहीं। टैब। तो जब तक ये शेयर करनी है जी, तो अच्छा, जीकेएस में ना अंडर ग्रेजुएट के लिए आता है सितंबर में, और ग्रेजुएट जो कि मास्टर और पीएचडी हैं उनका आता है फरवरी में। हर साल 2 ओपन होते हैं। और अब जीकेएस ने जो है एक नई फील्ड ऐड की है। 2 ट्रैक्स होते हैं, यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में पहले क्या होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है, वो एम्बेसी ट्रैक में आप कोई भी यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको एक ही यूनिवर्सिटी अलाउ है। तो मैंने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने हर डॉक्यूमेंट के 3 सेट्स बनाए थे, 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग और एक एम्बेसी के लिए अलग, 4 सेट्स टोटल। और हम कोई भी टीसीएस, पोस्ट ऑफिस, कोई भी सर्विस यूज़ करके उसको एम्बेसी ऑफ कोरिया में पार्सल करते हैं। ये सिंपल सा है। फिर क्या होता है, एम्बेसी उधर से सेलेक्ट करती है और वो कोरिया भेजती है, आगे प्रोसेस होता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का डिफरेंस क्या है, ये कि आपको एम्बेसी के थ्रू नहीं, आपने डायरेक्ट जिस तरह प्रोफेसर स्कॉलरशिप में आप भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, उसी तरह यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको डायरेक्ट भेजना होता है। कोई भी डीएचएल, पोस्ट ऑफिस, टीसीएस कुछ भी यूज़ करके। डीएचएल वैसे अच्छा है सुनने में डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक भेजने होते हैं। अब जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है एक बड़ा सा, जिसमें पहले में सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स और सब कुछ, और दूसरा फॉर्म्स फिर एसेज आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीकेएस में एसेज। आप 80% मिनिमम रिक्वायर्ड है, पर अपेंडिक्स ए अगर आप गाइडलाइंस में जाएं तो उनका जो टेबल है ना, उनकी परसेंटेज और हमारी परसेंटेज मैच नहीं करती। हमारी कम, उनकी ज़्यादा बनती है। मतलब हमारे वहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है एज़ कम्पेयर टू दैम। तो 80% उनके लिहाज से, तो वो आप ज़रूर टेबल देखें कि आपका 80% बन रहा है या नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 80%, या फिर टॉप 20 इन क्लास। फिर एसेज बहुत अच्छे लिखने हैं आपने। एसेज जो है ना, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं। और कुछ लोग होंगे जिनको कोरियन ड्रामास पसंद हैं या कोरियन सॉन्ग्स पसंद हैं या उस तरह के, तो मैं ये कहूँगी कि उनको मेंशन ना करें। बहुत गंदा इंप्रेशन बनता है कि आप पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, आप दूसरे कामों के लिए आ रहे हैं इधर। तो उसको मेंशन किए बगैर आप ये मेंशन करें कि मैं ये फील्ड है और कोरिया में इस फील्ड में इस चीज़ पे अच्छा, जिस तरह मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में एआई, तो मैंने क्या लिखा था कि किस तरह एडवांस जा रहा है 4G 5G। मैंने ना सिंपल गूगल करें आप अपनी फील्ड और न्यूज़ देख लें कि कोरिया में अभी इस टॉपिक पे क्या हो रहा है। तो उसके लिहाज से लोग मुझे कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट शेयर करें या रिव्यू करें। पहले मैंने बहुत की हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी है, सारा कुछ है, लैब है, तो अब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे एसेज लिखें, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और चैट जीपीटी से प्लीज़ ना लिखें, बिल्कुल साफ पता चलता है आपने कॉपी किया हुआ है, एआई से लिखवाया हुआ है। आप अपनी फील्ड के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं,
उसके अंदर पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कि ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको सॉल्व करें और आप बताएं कि आप क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, बिकॉज के आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधा सीधा, कोई आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप रिसर्च के लिहाज से इंटरेस्टेड हो, कोरिया में रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सारा कुछ। फिर आपके AI बहुत अच्छा था कोरिया में, तो मैंने वो उसके बारे में लिखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग स्किप कर जाते हैं कि KGSB GKS इज़ अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उनका मेन मकसद क्या है कि जितना पैसा उन्होंने हम पे लगाया है उसका कोई फ़ायदा हो एट द एंड उनको। और फ़ायदा किस तरह होगा कि अगर पाकिस्तान और कोरिया के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर मेंशन करें कि आप अपनी जो पढ़ाई की है, आपने जो फील्ड है उससे आपने जो सीखा है वो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान कोरिया को करीब लाने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ भी ले लें, कोई भी एग्जांपल। अब आजकल तो कोरिया और पाकिस्तान के काफ़ी प्रोजेक्ट्स साथ साथ चल रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है इकट्ठे। कोई भी चीज़ उठा लें उसमें से प्रोसेस में, या फिर नहीं हो रही और आप कोरिया में देख रहे हो ये अच्छी चीज़ जा रही है, तो आप कहें कि इस चीज़ पे कोलैबोरेशन हो सकती है या इस तरह मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सेलेक्ट होने के, क्योंकि आप उनको बता रहे हैं कि यू आर फुली प्रिपेयर्ड। उसके बाद स्टडी प्लान है हमारे पास। स्टडी प्लान में आपने उनको प्रॉपर बताना है, लैंग्वेजेस का भी बताना है। यूजुअली हमारे बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, हम सबको ऑलमोस्ट आती होती है। जिनको नहीं भी आती होती वो ये लिख सकते हैं कि मैं सीख रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे आती है पर स्पोकन अच्छी नहीं है तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कोरियन लैंग्वेज आप एशियन कंट्रीज़ जितने भी चले जाएँ, स्पेशली ये चाइना, जापान, कोरिया, इधर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अगर आपको इनकी ज़ुबानें नहीं आती होती। GKS का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको सिखाते हैं पहले साल में ज़ुबान, और उसके बाद इतनी आ जाती है कि आप आराम से जो है ना बात-शात कर सकते हैं। तो बस स्टडी प्लान ज़रूरी नहीं आप उसमें लिखें कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूँगा तो उसी पे करनी है। जस्ट के प्लान उनको पता चले कि वाक़ई में सब सोच के रखा हुआ है, पता है कि क्या करना है। तो मैंने जिस तरह अपना स्टडी प्लान लिखा था, मैंने उनको बताया था 4 सेमेस्टर होते हैं लैंग्वेज ईयर में। मैं किस तरह, जिस तरह अभी किसी ने बोला था उनका टॉपिक लेवल 1 है। टॉपिक 2 मेन लेवल्स में डिवाइडेड है, 1 और 2। 1 के अंदर 1, 2 है और 2 के अंदर 3, 4, 5, 6 है। और 3 आपको मस्ट चाहिए होता है अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के लिए। तो आप डिवाइड कर सकते हो कि मैं पहले 2 सेमेस्टर में इस तरह पढ़ूँगा, आखिरी में ऐसे पढ़ूँगी और फिर एट द एंड मैं पास कर लूँगी। और फिर उसके बाद अपने रिसर्च का बताना है। अब जिस तरह PhD ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है उनकी रिसर्च एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2 साल होते हैं। तो मैंने जो लिखा था, मैंने इस तरह लिखा था कि मैं अपने पहले 2 सेमेस्टर में सारे कोर्स वर्क ख़त्म कर दूँगी, जो कि सिंपल कोर्सेज़ आपको उठाने होते हैं वो। और आखिरी ईयर पूरा अपनी रिसर्च पे जो है फोकस करूँगी सारा कुछ। और मैंने इसी तरह किया था, ये अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स लिखने हैं आपके, ये मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक कोई भी टॉपिक हो सकता है। जिस तरह AI में अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस तरह करके। तो एसेस, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी ऑफ प्लान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स भी जिस तरह 3.4 CGPA है या कुछ भी है, लोग समझते हैं कि बिल्कुल 4.4 हो तो फिर आपको एडमिशन मिलता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं विद 4.0 और उनको एडमिशन नहीं मिला। तो ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। उसके अलावा ढेर सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, लैंग्वेजेस के, स्पीचेस के, सेमिनार अटेंड करने के। हमारे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं ना, उनके हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। या आपने अगर ग्रेजुएट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, या आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला है और उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई कुछ भी किया है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, मैंने जब अपनी प्रिपेयर की थी तो मुझे ईमेल्स आई थी। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मोज़िला फायरफॉक्स है, उसके एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए थे, पर मेरे पास कोई उसका सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं था। पर मेरे पास ईमेल थी जिसमें मुझे कंफर्मेशन आई थी कि यू आर सेलेक्टेड एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर। तो मैंने उस ईमेल का प्रिंट आउट करके भी निकाल लिया था, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में काउंट होते हैं। तो मैं जिस तरह जितने लोगों को गाइड करती हूँ GKS के लिए, सबको ये कहती हूँ कि इट डजेंट मैटर कि वो आपकी फील्ड का है या नहीं है, आप उनको अरेंज ऐसे कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट वाले आगे रख लो, बाकी पीछे वाले। इस तरह उनको ये पता चलता है कि पढ़ाई तो है ही, साथ बच्चा और भी एक्टिविटीज़ में जो है ना ऑलराउंडर है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी फॉर्म्स फ़ायज़ा खुलें, जी, स्टडी इम्पोर्टेंट। फ़ायज़ा आपको दिखाती है बाकी हमारे जो फॉर्म्स का। बहुत अच्छा मैडम, कम सायो। मैंने तो एक दोस्त से ये लफ्ज़ सीखा था जब उधर थे चाइना में। तो
अब तो मुझे भूलनी शुरू हो गई है। हम थोड़े-थोड़े लफ़्ज़ सीखते रहते थे जब चाइना में थे ना, जो कोरियन फ्रेंड्स थे। अच्छा, जितने भी सुन रहे हैं, कोरिया और चाइना और ये जो जापानीज़ हैं, इनमें से चाइनीज़ बड़े अजीब से लोग हैं, मगर ये कोरियन बड़े ओपन माइंडेड होते थे। ये हमारे साथ गेम्स भी करते थे, हमारे साथ पार्टीज़ भी करते थे। तो इस पे हम इंशाल्लाह लाइव इन कोरिया पे हम कमेंट्स करेंगे एंड पे। तो ये कुछ शेयर किया है फ़ाइज़ा ने। जी फ़ाइज़ा। जी, आपने सिंपली स्टडी इन कोरिया लिखना है गूगल पे और उसके बाद ये पहला लिंक यहाँ आता है। उसके बाद आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये ऊपर से फाइजा लैंग्वेज चेंज कर दो। यहाँ पे लैंग्वेज लिखा आ रहा है, इंग्लिश है इनके पास। हाँ, कर दिया। साथ-साथ कमेंट्स भी करते थे। जी। तो आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे जीकेएस की मतलब के खोल सकते हैं। एक मिनट। केजीएस पे नहीं है, केजीएस भी अलग से टैब था उसका। इन्होंने ना वेबसाइट रिसेंटली चेंज हुई है तो वेट अ मिनट। मैडम, आपको समर जो है वो कह रहा है दैट्स ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ये रही। ये रहा जीके स्कॉलरशिप पहला। जी। ऊपर हाँ, ये रहा जीके स्कॉलरशिप। क्लिक। ये रहे। इसमें ये सारी यहाँ पे इसकी मतलब उन्होंने दी होती है। अंडरग्रेड की तो चले मतलब बहुत सी कंट्रीज में सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो पाकिस्तान की एक सीट है तो वो हम रेकमेंड भी नहीं करते किसी के लिए। लेकिन आप ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए ओपन कर लें इसे, तो यहाँ पे हर चीज़ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी फाइल्स, उसकी एप्लीकेशन फाइल, यूनिवर्सिटी, इसके 2 ट्रैक्स होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक होता है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। तो आपको कौन सा ट्रैक ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, उसके थ्रू ये आपको यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि किस मतलब 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, टाइप ए, टाइप बी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ उनकी एप्लीकेशन के लिए है। टाइप ए में उन्होंने वो यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं जो उनके मतलब के अच्छे सिटीज़ में, जैसे सोल हो गया, बुसान हो गया। और टाइप बी में उन्होंने रखी हुई हैं रीजनल यूनिवर्सिटीज़। ये सिर्फ इनको इस वजह से डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह बिल्कुल जो गाइडलाइंस है फोल्डर, उसमें भी इसी तरह सारा कुछ है। उसमें कोटा भी लिखा हुआ है, कंट्री कंट्री। आपके इस ट्रैक की इतनी सीट्स हैं, इस ट्रैक की इतनी सीट्स हैं। अभी मुझे नजर आया R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने नया स्टार्ट किया है और इसमें आई थिंक 65+ लोग इस बार लिए हैं R&D में। तो अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट की साइड पे हैं तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंट्री वाइज सीट्स नहीं है, टोटल सीट्स हैं पूरी दुनिया में आई थिंक 200 और समथिंग। और उसमें से बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तानी बच्चों ने सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 65+। तो आई थिंक अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट की साइड पे हैं तो ज़रूर उसमें अप्लाई करें, तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एम्बेसी की वेबसाइट पे अगर चले जाएं तो एम्बेसी की GKSG 2025 लिख तो किसी भी एम्बेसी का खुल जाए, एक ही बात है, फॉर्म्स तो सेम है। और अटेस्टेशन में क्योंकि आजकल मोफा पे मेरे ख्याल से काफ़ी रश है, तो प्लीज़ पहले स्टार्ट करें और इस तरह डाउनलोड करके ये कोई भी खोल लो यार, किसी भी कंट्री का। ये इस तरह लिखेंगे ना आप, तो हमारा अब ये देख लें, एक गाइडलाइंस का है और एक फॉर्म्स का है। तो गाइडलाइंस व्यू पे अगर आप क्लिक करें, ये हमारी एम्बेसी है, कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान। फाइजा व्यू आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर लो साइड पे।
ये सारी गाइडलाइंस हैं इसके, और ये इसमें सारे कोटास हर चीज, कोटास, यूनिवर्सिटी के नाम और किस कंट्रीज की कितनी सीट्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और प्रोसेस कैसा है कि इधर से किधर भेजना है और कैसे सेलेक्ट होंगे, सारा एवरीथिंग लिखा हुआ है जो भी चाहिए आपको। अपेंडिक्स ए पे जाओगी एक दफा, ओ ऊपर चला ऊपर गया। ऊपर ऊपर ये रहा। ये देखना आप कि आपका CGPA 2.64 हो आउट ऑफ 4.0 तो आप एलिजिबल हो, वो 80% बनता है। तो ये ज़रूर इधर से कंफर्म कीजिएगा एक दफ़ा। हमारे कंट्री में 2.64 इज़ नॉट 80, इनका स्केल थोड़ा डिफरेंट है, पॉइंट स्केल। तो इससे ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा 80 नहीं बन रहा, उनकी डिग्री पे 80 नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपका CGPA इसमें आ रहा है तो यू आर एलिजिबल। और अगर आपका CGPA 100 में से है, मतलब इस स्केल में नहीं है, तो वो थोड़ा सा इशू है कि आपको यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेना होगा जिस पे लिखा होगा कि कन्वर्जन का कुछ और इस तरह कुछ करके। ठीक है मैडम, अब स्पेशल क्वेश्चंस आ रहे हैं फीमेल्स की तरफ से कि डिपेंडेंट के साथ जाना अलाउ है, ये भी बता दें। और एक कॉलर है हमारे साथ, पहले उनको ले लेते हैं। जी हसन, क्या क्वेश्चन है आपका क्विकली? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अगर मैं हेयर टेस्ट की तैयारी करूं और उसमें सर मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए कि मेरा ना CSC स्कॉलरशिप में ना आसानी से हो जाए? मेरे कुछ दोस्तों के 75-80 भी आए थे, तो बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। आपके 85 प्लस मार्क्स होंगे तो फिर आपको जो है चांस मिल सकता है, अदरवाइज क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चूँकि ये हमारा पॉडकास्ट फीमेल्स से रेलिवेंट था, तो अब हम पूछेंगे जो फीमेल्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे अक्सा ने पूछा है, ऊपर सोनिया ने भी पूछा है कि फीमेल अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकती है कि नहीं। तो फाइजा एंड नम्रा एंड मरियम इसका आंसर। जीके स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, आई थिंक डिग्री में भी अलाउ नहीं है। प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आपके, अगर आप अपने फंड्स शो कर देते हैं, लड़के भी मतलब अपनी वाइफ लेके आ सकते हैं, मतलब अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को ला सकते हैं। प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे इट्स अलाउड एंड स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर लाइक स्पोज, मतलब आए हैं लोगों के और आते हैं, तो उसमें फंड्स आपने शो करना होता है, लेकिन जीकेएस पे नहीं। जीकेएस पे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप भुलवा रहे हैं किसी को तो आपको उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। आपने खुद अपने इतने फंड्स शो करने हैं। ठीक है, तो मरियम आप ये बताएं कि वहाँ पे लाइफ कैसी है फीमेल्स की कोरिया में? जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड द कंट्री अलोन, तो आपने क्या देखा है वहाँ पे? क्या स्टीरियोटाइप्स थे जो आपके टूटे उधर जाके? ये पॉडकास्ट लंबी हो रही है, उसकी वजह ये है कि जो वीज़ा प्रोसेस और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक लंबा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो मेन पर्पस था पॉडकास्ट का वो यही था कि हम फीमेल्स कैसे, मतलब लाइक कोरिया के लिए फीमेल्स कोरिया के लिए कैसा है। तो द फर्स्ट थिंग इज कोरिया सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। तो एज अ फीमेल जो है वो मैं लड़कियों को इसलिए कोरिया रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ पे जो सेफ्टी है वो आई थिंक 100% है। हम लोग आधी रात को भी लैब से घर जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारा थोड़ा सा है कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो हमारा एज अ सोसाइटी जो है वो हमारा थोड़ा सा इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि फीमेल्स रात को नहीं निकलती वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम आधी रात को भी निकल के बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी है वो यहाँ पे 50-50 है। यहाँ पे फीमेल को अलग और मेल्स को अलग ट्रीट नहीं किया जाता, यहाँ पे दोनों को इक्वली रखा जाता है। लाइक मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रही थी कि कल मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि जो वॉल पेंट कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स की,
तो यहाँ पे कल मैंने देखा कि एक फीमेल आंटी जो है वो वॉल पेंट कर रही थी यहाँ पे, जो मेरे लिए थोड़ा सा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने कभी इस तरह की कुछ चीज़ नहीं देखी। इसी तरह आप किसी भी शॉप में चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पे आपको फीमेल्स जो है ना वो उनकी जो परफॉर्मेंस है विद मेल 100% आपको नजर आएगी। तो ये चीज़ हमें मोटिवेशन भी देती है कि जो एक स्टीरियोटाइप है कि फीमेल्स, हमारे यहाँ के फीमेल्स जो हैं वो ये काम नहीं कर सकती, तो मैं वो स्टीरियोटाइप मेरा यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है, क्योंकि सेरिबल के लिहाज से अगर देखा जाए मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो अब जैसे मैं भी अगर लैब में हूँ तो मैं मेल के इक्वल ही जो है वो काम करती हूँ, लाइक रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं इससे मेरा थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो मज़ीद ओपन हुआ है, और मज़ीद मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है रिलेटेड टू लाइक कि जो हमारे यहाँ फीमेल को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाता है पाकिस्तान में, और एक कहा जाता है कि ये काम मेल करेंगे और ये काम फीमेल करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आके देखी हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे देखी है वो ये है कि पाकिस्तान के कल्चर में हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे हम सर्वेंट्स रखते हैं अपने लिए, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे हर बंदा, वो चाहे प्रोफेसर है, वो चाहे यूनिवर्सिटी का डीन है, वो अपना काम यहाँ पे खुद करता है। यहाँ पे इस चीज़ का कल्चर नहीं है कि मैं अपने लिए कोई सर्वेंट रखूँ या मैं अपने लिए कोई हेल्पर रखूँ। तो ये चीज़ भी मेरे लिए एक अच्छी थी कि ये चीज़ें एज अ मुस्लिम नेशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी तो ये मेरे लिए थोड़ा सा क्या था कि मेरा माइंडसेट चेंज हुआ चीज़ों को लेकर। तो मैंने इन चीज़ों को अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया। जब मैं चाइना गया था और यूरोप आया, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं वो इकोनॉमी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो अक्सर मैं अपने प्रोफेसर के साथ बैठ के जब बात कर रहा होता हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं, जब तक आपकी फीमेल्स इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, आप भूल जाएं कि आपके कंट्री में पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो आई डोंट नो कि क्यों सब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें फीमेल्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारी तरक्की भी नहीं हो पा रही। बट विद होप्स हो कि अब आ रही हैं फीमेल्स आगे, तो चेंजेस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी। तो अच्छा, मैं फ़ायदा से पूछता हूँ, फ़ायदा अगर आपका जो स्कॉलरशिप है उस पे फीमेल्स मेल अपने स्पाउस को साथ लेके आते हैं, अगर उनका एक बेबी है, तो क्या वो उस स्कॉलरशिप से अपने सारे जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नॉर्मली चला सकते हैं, या कोई हार्डशिप्स होती हैं उधर लाइफ में? अगर आप जीकेएस की बात कर रहे हैं तो जीकेएस पे जैसे नम्रा ने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे लैब्स की टाइमिंग और डेज प्रॉपर होते हैं। तो जीकेएस की स्कॉलरशिप पे आप अपने डिपेंडेंट को और बेबी को सपोर्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट इनफ फॉर वन पर्सन, मतलब कि वो इतना ही देते हैं कि पर्सन अपने आप को सपोर्ट कर सके। और अगर आप पार्ट टाइम जा भी रहे हैं तो वो वीकेंड्स पे होगा, वो भी इतना नहीं होगा कि आप एक बेबी को यहाँ सपोर्ट कर सकें या अपने मतलब स्पाउस को सपोर्ट कर सकें। और यहाँ पे बेबीज का किंडरगार्टन वगैरह, मतलब अब कोरिया टोटली मतलब उस तरह से वेलफेयर कंट्री नहीं है। यहाँ पे उनके पैसे होते हैं, मतलब आपको पे करना है अगर आप किंडरगार्टन में यूज कर रहे हो। हर चीज एक्सपेंसिव, कोरिया इज एक्सपेंसिव कंट्री, मतलब कोरिया महंगा कंट्री है। सेफ्टी एंड एवरीथिंग हर चीज है, लेकिन महंगाई है कोरिया में। तो इस स्कॉलरशिप पे आई डोंट थिंक कि आप मतलब अपने डिपेंडेंट्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर पाओगे। बिल्कुल, यूरोप में भी हमारी यूनिवर्सिटी का जो किंडरगार्टन है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उससे क्या कहते हैं? डे केयर। ठीक है। केयर, उसकी जो फीस है वो 690 यूरो है पर मंथ। तो अगर मेरा स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल 1250 स्कॉलरशिप है, तो मैं बिल्कुल भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, और यहाँ पे भी आपको फिर 2-2, 3-3 पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, कि कोरिया में जो मेरे दोस्त थे जब मैं चाइना में था, तो वो एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से और एक डिप्रेशन से गुजर रहे होते थे एज़ कम्पेयर टू अस जो हम चाइना में होते थे। और जब मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे कि प्रोफेसर्स की तरफ से बहुत प्रेशर है, और वो सारी रात भी काम कर रहे होते थे लैब्स में, और हम अपने घर में सो रहे होते थे। तो वो मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि तुम अच्छे रहे हो चाइना जाके, तो कैसा था वाकई वहाँ पे? एक डिप्रेसिव इन्वायरमेंट है
टू बी अगर इसका ऑनेस्ट आपने बिल्कुल स्ट्रेट आंसर, इट्स ट्रू। फास्ट पेस लाइफ है इनकी, और इट्स ट्रू। अगर आप आ रहे ट्रू। हैं तो आप इस पूरा माइंडसेट बना के आए कि फुल्ली जो है ना, आपकी जिंदगी एक तरह की लैब में गुजरने और वाली। मुझे जैसे याद है। मरीम ने बताया कि वो ये नहीं देखते आप फीमेल हैं कि मेल हैं, आपको मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 मेल के बराबर हर दिन उतना ही प्रेजेंट होना है, बेशक आप फीमेल हैं या जो भी है मतलब। तो और यहाँ पे तो अगर आप 6 बजे खाना शाम को खाने जा रहे हैं तो सम प्रोफेसर वो उन्हें होता है कि आप वापस आएँ, जैसे लैब्स में वेट लैब्स हो गई, इनके टाइमली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने 12 आवर्स बाद चेक करनी है किस तरह। वो ये नहीं देखेंगे आप फीमेल हैं, वो कहेंगे रात 12 बजे भी क्या टाइम लगा हुआ है, यू हैव टू चेक योर एक्सपेरिमेंट एंड टेक द रिजल्ट्स आउट। तो जब एक्सपेरिमेंट लगते हैं तो तब तो दिन रात भी बराबर यहाँ पे चल रहे होते हैं और वो आते हैं दिन लोगों पे, तो ये बिल्कुल सच बात है। ओके, इस मामले वन में मोर थिंग इज जो मैं यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ लड़कियों में। मैं और फायजा भी कल डिस्कस कर रहे थे कि साइकोलॉजिकली हमारे यहाँ लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हमें एक बहुत ही पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है लड़कियों को। तो इसका एक जो सबसे ज्यादा अभी हम लोग डील कर रहे हैं लड़कियों को, वो इश्यू यही आ रहा है कि लड़कियां जो है ना वो मेंटली इतनी डिप्रेस होती जा रही हैं। एक तो यहाँ पे जो आ रही हैं लाइक आफ्टर Really? 6 months, वन ईयर उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। दे नीड साइकेट्रिस्ट, दे नीड साइकोलॉजिस्ट। उसकी वजह ये है कि एक तो हम फीमेल्स जो होती हैं वो एक फैमिली में रही होती हैं, तो एकदम से हम अलग रहना स्टार्ट होते हैं, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस इंसान का आता है। दूसरी जो चीज़ है वो लैब्स होती हैं, लैब्स का जो इन्वायरमेंट होता है, हर लैब का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो लड़कियां थोड़ा सा ना ये प्रेशर बेयर नहीं कर पा रही होती। तो जो मेन थिंग है, मैं उन लड़कियों को रिकमेंड करूंगी जो मेंटली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हैं। डोंट मूव आउट फ्रॉम योर होम अगर आप लोग मेंटली इस काबिल नहीं हैं कि आप अकेले सरवाइव कर सकें। ये बहुत बड़ा इशू है कोरिया क्या पूरी दुनिया में, कि लड़कियां जो है ना वो फिर जाती हैं, फिर हमें एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो काइंडली जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना माइंड, अपना दिल इतना बड़ा करें कि हम अकेले सरवाइव करेंगे। वर्ड इंडिपेंडेंट जो है ना उसको अब हम गलत यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप कमाएं इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ केयर पे भी फोकस करें। ठीक है, अगर हम खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं है, हमारी सेहत डाउन हो रही है, हम अपनी लैब में कुछ भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये मेरी हर लड़की से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मूव कर रहे हो अपनी घर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, तो काइंडली पहले थिंक वन टाइम बिफोर मूविंग आउट फ्रॉम योर होम कि आप अकेले सरवाइव कर सकते हो या नहीं। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप अकेले सरवाइव करने के काबिल हो, देन आप अपने घर को छोड़ो, ताकि आप यहाँ पे आके ना किसी पे बर्डन बनो। और जैसे कि प्रोफेसर भी थोड़े से हो जाते हैं, और अगर कोई लड़की ये कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी है, तो वो फिर आपकी एक तो आपकी पीएचडी भी इफेक्ट होगी इन चीज़ों से। दूसरा ये कि आपको ना यहाँ पे एक दिन कोई ये बात सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन प्रोफेसर कहते हैं ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, मतलब लाइक वो अक्सर ये भी कहते हैं कि ये लोग बहाने कर रही हैं। तो इसलिए मेरी हर लड़की से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, देन अपने घर से आप बाहर आओ। थैंक यू। एक और बात कहूंगी, जी जी सॉरी, मैडम, कि जब लड़कियां यहाँ पे लड़कियां नहीं लड़के भी, मतलब जब आप आते हैं तो शायद आपको पता तो होता है आपने जाके मतलब अलोन रहने या इस तरह, लेकिन शायद बैक ऑफ द माइंड उनके होते हैं हमें वहां पे जाके शायद दोस्त मिल जाएंगे, कोई साथ डिपेंडेंट मतलब इस तरह कुछ मिल जाएगा। वो लैब में भी थोड़ी सी डिपेंडेंसी ढूंढ रहे होते हैं, रिहाइश में भी ढूंढ रहे होते हैं, जब वो नहीं मिलती ना तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है कि मुझे तो सपोर्ट ही नहीं मिल रही। लेकिन ये आपको अप्लाई करते हुए पता था ना कि आपने अकेले अप्लाई किया, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस अकेले, मतलब आपने अलोन सब कुछ करना है। जब आप ये अपना माइंडसेट बना लोगे ना तो आप चीज़ों से इफेक्ट होना भी छोड़ दोगे। अब आप लैब ज्वाइन करते हो, लैब में जी मेरा कोई साथ नहीं देता, क्यों साथ दें, आपने अप्लाई करते हुए उसको थोड़ी किसी को अपने साथ किया था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पहले से सोच के रखें। ओके, तो इसमें मैं ऐड करूंगा, इस मामले में मैं यूरोप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, वेस्ट को। इनमें खामियां ज़रूर हैं मगर यहाँ पे लाइफ और वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। जब मैं चाइना से आया था तो मुझे चाइना में रात के 10-10 बजे तक काम करने की आदत थी।
तो यही चीज़ मैंने जब यूरोप में आके रात के 9 बजे तक लैब्स में बैठना शुरू किया, तो यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकाला कि अहमद रज़ा जो है वो 4 बजे के बाद लैब में नज़र ना आए। तो मैंने वो नोटिफिकेशन प्रोफेसर को सेंड किया, तो प्रोफेसर ने मुझे डिस्करेज किया। उसने कहा कि यूरोप में पर्सनल लाइफ और वर्क बहुत बैलेंस है। उसने मुझे कहा कि 3 बजे के बाद तुम स्पोर्ट्स किया करो, खेला करो, अपने दोस्त बनाओ, ठीक है। और सम टाइम्स मेरे प्रोफेसर ने मुझे जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप अप्रूव करता है। वो मुझे कहता है कि तुम देख के आओ, दुनिया देखो, घूमो फिरो। जो ये पीएचडी जो है वो सिर्फ लैब में और चेयर पे बैठने का नाम नहीं है। उसने मुझे काफ़ी इस तरह मोटिवेट किया कि अपनी नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, अपनी पर्सनल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करो। एक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जो चाइना में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। वहाँ पे प्रोफेसर जो हैं वो यही कहते थे, पेपर पब्लिश करो, पेपर पब्लिश करो। सेकंड चीज़, मैंने अपने प्रोफेसर को कहा, जो मेरे चाइना में दोस्त पीएचडी कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि वो हर 6 महीने में पेपर निकाल रहे हैं और मेरा पीएचडी का तीसरा साल है, तो मेरा एक भी पेपर नहीं है। तो मुझे प्रोफेसर ने बताया कि जो ये चाइना, कोरिया और अदर कंट्रीज हैं, मलेशिया, इनकी रिसर्च में पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सोसाइटी में, रिसर्च में ना। तो उसने कहा कि यूरोप में इस रिसर्च को डिस्करेज करते हैं। उसने कहा कि तुम्हारा एक ही पेपर होगा और वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेड रिसर्च होगी। तो फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एल्गोरिदम बना रहे हैं जो फिजिशियंस को गाइड करेंगे और वो हॉस्पिटल्स में हमारे एआई एल्गोरिदम चलेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यूरोप में, वेस्ट में ये वो काम नहीं करते जिसकी सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो इन्होंने जो चीज़ कही है ये चाइना में हमने बिल्कुल फेस की थी। तो उम्मीद है कि सब लोगों ने आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो एंजॉय किया होगा। तो इसमें फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन थी, ये हमारे मुल्क का असल इमेज है। वेस्ट में भी बहुत मुझे बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके मुल्क में फ़ीमेल्स को आगे नहीं आने देते, जिस तरह मरियम ने कहा, हमने पहले भी डिस्कशन की। तो फ़ीमेल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन, जैसे वो अकेली जा रही हैं। जैसे मैं जब आ रहा था पाकिस्तान से, तो एक पाकिस्तानी लड़की थी, उसने मुझे कहा कि मेरा ये सामान जो है एयरपोर्ट पे वो आपने उठाना है। तो वो इतनी डरी हुई थी कि वो बिल्कुल नीदरलैंड के एयरपोर्ट पे भी पहुंचने से डर रही थी। तो अकेले हिम्मत पैदा करें, कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बदल गई है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। कोशिश करें कि इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करें, अपने घर की इकोनॉमी में, अपने मुल्क की इकोनॉमी में, फिर ही जो हमारी चीज़ें हैं वो सेट होंगी पाकिस्तान में। अदरवाइज़ फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन के बगैर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में। तो मैडम, एंड पे एक छोटा सा टेक अवे मैसेज दे दें हमारी सोसाइटी को, स्पेशली फीमेल्स को। तीनों पहले जो भी देते। हाँ, मेरा टेक अवे मैसेज यही है कि बी स्ट्रॉन्ग। जैसे अहमद सर ने कहा कि दुनिया जो है ना वो वैसी नहीं है जो हम अपने मुल्क में बैठ के हम लोगों ने एक इल्यूजन में बनाई हुई है। ठीक है, लोग हेल्पिंग भी हैं और लोग जो हैं वो मतलब लाइक लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। खैर हमारी कंट्री में भी किया जाता है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिलीज ने हमें सपोर्ट किया तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग रहें और अपना कोई भी नई चीज़ जो है वो ट्राई करने से घबराएं ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नई चीज़ करने से घबराएं ना और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप जो है वो पॉजिटिव इनपुट जो है वो सोसाइटी में दे सकें। तो ये मेरी तरफ से एक टेक होम मैसेज है सब लड़कियों के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि हम लोग, मतलब लड़कियों को मैंने देखा है अप्लाई करना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। तो मैं यही कहूँगी, टेक फर्स्ट स्टेप, अपना थोड़ा माइंड और इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। और मैं ये भी कहूँगी, जो माइंडसेट पाकिस्तान में, प्लीज़ उसे पाकिस्तान में छोड़ के आएँ। फिर डिप्रेशन और एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट की ज़रा कम ज़रूरत पड़ेगी। बस हिम्मत पकड़ें, सब कुछ आसान हो जाता है। और एक पॉजिटिव और एक वो शहरी बने जो वाकई ज़रूरत है जिसकी हमारे मुल्क को। आप बाहर बैठ के भी मुल्क को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, खुद हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते और वहाँ पे इतनी सोसाइटी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये मेरा अक्सर प्रोफेसर बिल्कुल। मुझे कहते हैं कि खुद आप लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और उधर
आप लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ओके मैडम, आप नम्रा? तो मैं ये कहूँगी कि पहला स्टेप जिस तरह फ़ाइज़ा ने कहा हमेशा बहुत मुश्किल होता है। एक दफ़ा वो ले लें, आगे के सारे स्टेप्स जो हैं ना बहुत आसान हो जाएँगे। तो वो एक पहला कदम ले लें, अपना माइंडसेट बना लें बिल्कुल। हमेशा जो है ना आपके जितने भी दोस्त हों, इवन इन पाकिस्तान आपके यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, घर आते हैं, घर वालों के साथ होते हैं, पर आपकी लाइफ़ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अपने आप पे डिपेंड करना सीखें, दूसरों पे डिपेंड बिल्कुल स्पेशली बाहर आके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बेशक आपकी कंट्री के हैं, बेशक आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, सिचुएशन हो जाती है, कोई भी कुछ ना कुछ हो सकता है। किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने आप पे करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। और अगर कोई कहे कि मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो। कोरियन में 5 लाख इज़ नॉट दैट बिग ऑफ That अ मनी। it's like around 1 lakh Pakistani. 1 So लाख पाकिस्तानी पैसे। तो अगर तो बहुत-बहुत करीब हो तो दे दो, अगर नहीं हो तो किसी रैंडम पे क्यों भरोसा करना, फिर बाद में बंदा अपने पे आ जाती है इफ यू नीड दैट मनी। और पाकिस्तानी होते भी ऐसे हैं ना कि अपने पैसे माँगने में भी शर्म आ रही होती है कि यार कैसे माँगे। बिल्कुल तो और स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं बाहर, तो बिल्कुल फुल जिस तरह सोल्जर की तरह बाहर निकलो। शुरू में हर कोई मिस्टेक्स करता है, मुश्किलें आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं है, होता रहता है। और फिर यही है कि अपना अच्छा प्रिपेयर करो खुद को, बाहर निकलो, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब करो, अपने घर वालों के बर्डन बांटो और मुल्क को थोड़ा बेहतर करो। बस यही बिल्कुल। कहूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जब चाइना में मैं प्रोसीजर कर रहा था तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि एम्बेसी से और फिर अपोस्टाइल हमने करवाया था, तो मेरे पास फिर वीज़ा के भी पैसे लगे, तो टिकट के पैसे नहीं थे। और मैंने अपने दोस्त को चुपके से बताया कि यार मेरा यूरोप में एडमिशन हो गया और मैं चाइना से जा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो उसने मुझे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे चाहिए, उसने मुझे सेंड किए, कहता कि जाओ, अब तुम्हारा यूरोप जाने का शौक भी था। तो फिर जब मैं यूरोप आया, मैंने उसके एडमिशन के लिए अपनी कहते हैं ना कि दिल जान की बाजी लगाई, और आज वो मेरा दोस्त इधर है। फिर जब वो इधर आया तो मैंने उसकी टिकट करवाई। तो ऐसा दोस्त लाजमी लाइफ में रखें जो जी, आपको और सपोर्ट मिल करे। जाते हैं, मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, अपनी बनते वो हैं। ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होती हैं। बस आप और इसका इन फ्रेंडशिप्स में भी वही होता है, गिव एंड टेक। अगर आपको कोई दे रहा है तो उसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उससे और उसी तरह वापस करें उसे। 100% सिंसियरिटी होती है हर रिलेशन में और फ्रेंडशिप में भी। बी बिल्कुल, सिंसियर टू एवरीवन। हुँ। ठीक है। अच्छा मैडम, काफ़ी कमेंट्स हैं, इनको हम अब नहीं लेंगे। सॉरी, आपके 22 मिनट्स हमने ज़्यादा लिए। मगर एक कमेंट है अकबर अली का, वो कह रहे हैं ग्रेट कन्वर्सेशन, और समर कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आपने हमें टाइम दिया, और सॉरी 23 मिनट ज़्यादा हो गए, आपसे मैंने 1 घंटे का प्रॉमिस किया था। मगर कन्वर्सेशन जब चलती है तो उसमें काफ़ी इट्स चीज़ें ओके। नई-नई निकलती हैं। तो जो चीज़ें रह गई हैं मैडम, हम आपसे दोबारा टाइम लेंगे इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़। जिस तरह यहाँ पे प्रोफ़ेसर हमें 15 दिन का टाइम देते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ बाद मिलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा मैसेज करूँगा। जिन लोगों ने सुना, जो कॉल पे आए, जिन्होंने कमेंट्स किए, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह